In de sloppenwijken van de Indiaase hoofdstad Delhi maakt een groep straatkinderen hun eigen krant. De 17-jarige editor Shambhu en de 16-jarige reporter Jyoti zijn de makers van het dagblad dat vertaald uit het Hindi Stem van de Kinderen betekent. In de krant worden er alleen berichten geplaatst die gaan over straatkinderen en wat ze meemaken, variërend van goede daden en noodhulp tot corruptie bij de politie en drugsverslaving. Er wordt gebruik gemaakt van 1 computer en een ouderwetse drukkerij. In India leven er ongeveer 2 miljoen straatkinderen. De straatkinderen distribueren 10.000 exemplaren van de krant aan mensen in verschillende wijken om hun stem gehoord te krijgen. जैसे हमारे घर में एक कीड़ा आ जाते हैं तो उसको मार मार के ऐसे भगा देते, झाड़ू वारू लेकर भगा देते। क्योंकि जो भारतीय देश के जो लोग हैं ना, इन बच्चे से जैसे रहते कि ये कीड़े मकोड़े हैं। कुछ भी मेरे साथ हो सकता था, क्योंकि स्टेशन की ज़िंदगी में क्या होता है कि जो भी लड़की स्टेशन पे रहती है उसकी ज़िंदगी ख़राब हो ही जाती है, वो नहीं निकल सकती। मतलब गंदी गंदी उनके मुंह में वर्डें आती है, बल्कि वो बंदा पूछ ही नहीं सकता हमसे कि तुम क्यों रह रहे हो जगह पर। ये सबसे खुशखबरी बात है कि ये खुद एक बच्चे चलाते हैं, जो कि शायद इतना बड़ा काम तो बड़े लोग भी नहीं करते। हम बच्चे जो सड़क पे रहते हैं तो हमारे रिपोर्टर जाकर उनकी पूरी बात सुनते हैं, फिर छानबीन करता है क्या सच है। In the laneways of Old Delhi, a young editor and reporter are about to show me an unusual revival taking place across the country. Here in this sweaty time capsule of ink and machine, Shambhu and Jyoti are printing almost 10,000 copies of a newspaper made entirely by street kids. Right now around the world, papers are dying. But in India, the print industry is experiencing an incredible boom. This paper is called Waakhond. In Hindi, that means voice of the children, and it's being read by people as far away as London and the USA. What's more surprising is Shambhu and Jyoti and everyone at the paper are street kids. ये सबसे खुशखबरी बात है कि ये खुद एक बच्चे चलाते हैं, जो कि शायद इतना बड़ा काम तो बड़े लोग भी नहीं करते। हम बच्चे जो सड़क पे रहते हैं, जिसे समाज घिनने करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। इसमें खासियत बात है कि हम किसी और बड़े लोग के या भी बड़े बच्चे की न्यूज़ नहीं छापते, स्पेशली ये सड़क पे रहने वाले बच्चों की ही खबर छपता है और उनकी आवाज़ें पहुँचती हैं। Jyoti's excited. She's never seen a paper printed before. Do you want to become the editor of the Waakhond one day? हाँ, मैं वाखंड का एडिटर बनना चाहती हूँ, क्योंकि क्या नाम है, जैसे हमारे शंभू भैया है, तो मेरे मन में खुशी होता कि काश मैं होती तो मैं हर बच्चों की स्टोरी अच्छा छाप देती। India's street kids are the poorest of the poor. Nicknamed the invisible children because they live in the city's shadows. This camp is 16-year-old Jyoti's home. बहुत खुश
She's the paper's most senior reporter, but Jyoti and her mum have just enough food for tonight. मेरी ज़िंदगी में जैसे कि जब मैं पत्रकार बनी तो मेरे पहले क्या था कि मेरे घर में कोई जल्दी नहाता धोता नहीं था, सारे गंदे रहते थे। तो मैं क्या करती थी, अब मैं नहाती धोती थी, मुझे अजीब लगता था कि मैंने इस तीसरे से जुड़ी, वो मेरी सारी ज़िंदगी में ही होता है। Her home is a slum next to this major bus stop. For years, she's watched people pass her without a second thought. जो लोग अच्छे होते हैं, उन लोग का हमारे आंखों में गलत लगते हैं कि जो बंदे यहाँ लोग रहते हैं वो गलत है, वो चोरियाँ करते हैं, शराब पीते हैं, मतलब गंदी उनके मुंह में वर्डें आती है। बल्कि वो बंदा पूछ ही नहीं सकता हमसे कि तुम क्यों रह रहे हो इस जगह पर। दुनिया को ये जानना चाहिए कि जैसे मैं जी रही हूँ वैसे हर बच्चे ना जिए। There are at least 2 million street kids who live like Jyoti in India. She's one of only 60 slum kid reporters at Waakhond, so they have an enormous task, trying to give a voice to those who feel ignored and invisible. Out here in the slums, the search for a good story starts early. क्या नाम है, हर लोग के नज़र में मैं एक लड़की और छोटी हूँ मैं। सब ये कहते हैं कि आप कितना बड़ा काम करते हो, एक दूसरे बच्चों के लिए मदद करते हो। Jyoti's never been taught journalism, but weaves in and around these slums easily. हाँ, जैसे कि मेरी खासियत है कि मैं क्या करती हूँ, एक दूसरे बच्चों के साथ घिन पना नहीं करती हूँ। She receives a tip-off about 2 children and finds these young kids alone guarding plastic bottles, which provides the family's only income, leaving them vulnerable to thieves. अच्छा, कितने बोतल आपने बीने? कितने बोतल बीने आपने? और आपने? भाई ने बीना और मम्मी ने बीना है। और तूने नहीं बीना? It's winter in Delhi, and Jyoti, who knows what it means to sleep rough, thinks of a good angle for her story. आप बताओ कि क्या नाम है? आप ठंड में कैसे रहते हो? जैसे कि क्या नाम है, यहाँ पर इतना बड़ा जगह है, खुला जगह है, आप ठंड में 11 अब बंदा 4 बजे 5 बजे इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तुम लोग कहाँ सोते हो बच्चे? आके बता। इधर यहाँ सोते आप लोग? अच्छा, ये पूरा ऐसे पूरे दिन सोते और एक ही कंबल में। ठंड लगती होगी आप लोग को? नहीं आती है। Slums have existed for centuries in India, but the latest census shows they're growing on average by at least 1 million people every year. Jyoti hopes writing about these conditions will make someone pay attention. पैकेट में क्या है? निकालना। किसी को ओढ़ते हो आप लोग? किसी को ओढ़ के सोते हो? मम्मी पहनता है। मम्मी पहनती आती है। सबसे बड़ी बात मैं अपनी एक भी सोच ही नहीं डालती उसमें कि मेरा क्या सही है, मेरा क्या गलत है। जो भी बच्चे बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर ये परेशानी हुई है, मैं सही से वही लिखती हूँ। But staying objective can be hard for these young reporters. As a local security guard arrives, we leave, and I sense Jyoti's frustrated. मैं क्या मदद मिल पाता उस बच्चे का? मैंने इतना बुरा कम्बल देखा, बल्कि पास में ही चौकी है। बस पुलिस वाले भैया दीदी को भी दिखता होगा कि ऐसे बच्चे इस जगह में रह रहा है, खुला जगह है, और उन लोग को दिखता भी होगा तो वो लोग क्या कहेंगे लोग? As a country, India economically is on the way up.
Literacy rates are rising here and newspapers are now read by millions. And in amongst all these up-and-coming papers is Waakhond, a kind of slumdog press. It would be hard to meet an editor more passionate than 17-year-old Shambhu. एक एडिटर के अंदर वो विशेषता होनी चाहिए कि अब वो एडिटर बन गया तो अपने आप को एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए कि मैं एक एडिटर हूँ तो मैं उन बच्चों की बात नहीं सुनूंगा. This is the newspaper's editorial meeting. Held in downtown Delhi, all the street kids are invited to pitch story ideas to Shambhu. मैंने एक बार देखा था एक बच्चा विकलांग पैसा मांग के नशा कर रहा था तो मैंने बोला नशा क्यों कर रहे हो मेरे साथ चलो तो मैं अच्छी ज़िंदगी दूंगा. सेंटर में लाके उसे खाना वाना खिलाया था उसके कपड़े फटे थे उसे नए नए कपड़े पहनाए थे. एक तो पहले एक बात है कि भोलू ने इतनी मदद किया कि उस बच्चे को होम सेंटर मिला. अगर उसको तो भोलू के लिए जोरदार ताली बजाए. बहुत अच्छा काम करता है. तो जैसी मैं अपनी स्थिति बीत गया अगर मुझे ऐसे बच्चा मिलता तो मैं सबसे पहले उनको टच करूंगा और उनको वो सिर्फ उनको एक अच्छी रास्ता मिले जो कि उस सीधे रास्ते पर चले. उनसे कोई गैर कानूनी क्योंकि ये बच्चे ना मासूम हैं. इनको जैसे बोलेंगे वो ऐसे ही करेंगे क्योंकि इन पे दबाव होते. Shambhu knows he has to be careful when dealing with his reporters' stories. They are first-hand experiences and often confronting. Like this young reporter who reveals a shocking allegation about police. तो वहाँ पे एक पुलिस वाला है वो आता है रात को वो पैर दबाने के लिए ले जाता है. वो पैर दबाते वो गलत काम करने के लिए भी बोलता है. वो फिर बोलता है पैसे ले ले मेरा चेला बन जा मैं तेरे को कंबल दूंगा ये पैसे दूंगा बहुत सारे ये सब बोलता है. तो मैम वो एक दिन मेरे को भी ले गया था तो मेरे दोस्त ने मेरे को पहले ही बता दिया था कि थोड़ा सावधान रहियो. जो स्टेशन पे लड़के रहते हैं हम सुरक्षित नहीं है. तो मैंने बोला क्यों तो क्योंकि जबरदस्ती हमसे नशा. Sadly, allegations of sexual abuse are not uncommon. At this newspaper, everyone knows the slums and what living there is like. एक्चुअली ना ये बच्चे ना जो स्टेशन पे रहते हैं या फिर अदर जगह पे रहते हैं तो इनका ना हल्का स्टोरी कोई भी नॉर्मल नहीं होता. तो कोई भी हम एक भी स्टोरी अगर बच्चे का केस स्टडी भी है ना वो नॉर्मल नहीं है. सब डिफ़िकल्टी है. और भी तो लोग कार्य में जा रहे हैं वो क्यों नहीं मदद कर रहा है. हम बच्चों की क्यों जरूरत है लेकिन उनके दुनिया में क्या हो रहा है कुछ हो रहा है उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है. और फिर वो जाके उनको जब पता चलेगा तो हो सकता है वो हमारी मदद करे. But reversing the fortunes of street children's lives isn't easy. Shambhu knows it takes time. The sun isn't up yet and he's already at work, but not for the paper. ये है ना कि जो मैं गाड़ी धोता हूँ और मेरे पापा भी होटल में काम करते हैं तभी हमारे घर का खर्चा चलता है. अगर हम ये ना करें तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा. This isn't the life he saw for himself. Shambhu's family are migrants. They arrived from rural India in search of work after floods destroyed their livelihood. But city life was tough. जब मैं उस वक्त था वो एक वक्त में अगर मैं गया दोबारा तो मुझे पिछली बात सुन के मुझे बहुत रोना आता. अब फिर वहाँ से आने के बाद जो हमारे जो सामान बेचते थे ना वो भी जैसे फाटक स्टेशन पे जो बैठ के कभी कभी बेचना होता था तो वो भी पुलिस वाले भी हफ्ता लेते थे. अगर हम हफ्ता नहीं देते थे तो मारते थे. एक दिन इतनी बुरी तरह से मारता तो मैं पीठ लाल हो गया था. The paper is a new opportunity for Shambhu to make a future for himself. It's funded by a charity and reporters are given a small allowance so they can go to school. लेकिन अब वो पहले का ज़िंदगी में अब थोड़ा बदलाव है कि अब मैं जैसे गाड़ी भी धोने जाता हूँ तो वहाँ भी सब मुझे पहले जब रिपोर्टर था तो रिपोर्टर साहब कह के बुलाया. पहला दिन मुझे किसी ने मतलब रिपोर्टर साहब बुलाया तो मुझे अंदर से इतना खुश हुआ कि मुझे पूरा दुनिया ही मिल गया. Waakhond has lifted Shambhu and Jyoti's lives and they wanted to help others too. So I'm heading to see one way the paper's doing this, at a centre for street kids who are addicted to drugs.
हेलो नमस्ते। ये ना एक निजामुद्दीन सेंटर है। यहाँ पे जो ये जो सेंटर है इसमें ना जो नशे करने वाले बच्चे जो स्टेशन पे रहते हैं। The government says Delhi has a staggering 70,000 children addicted to drugs. Shambhu and Jyoti are here to teach these kids to read because literacy could bring change to their lives. करने पर क्या आया मुझे बताओ। हमारे समाज में सड़क एक कामकाजी बच्चों को गलत नजरों से देखा जाता है लेकिन सड़क एवं कामकाजी बच्चों की भी बहुत ऐसी खूबियाँ होती है कि जब Today, Bolu's made the news with his good deed, helping a disabled street kid. His photo's in the paper, the first he's ever seen of himself. Bolu, how does it feel to see your photo in the paper? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। सबको मैं अपने फोटो दिखाना चाहता था। फोटो मैंने कभी जिंदगी में अपना पेपर में देखा नहीं है। These kids rarely feel their lives are important. Jyoti tells me that many kids escape their life by sniffing a glue used to fix bike tyres. And she's done more than just write about this. जब मैं 8 साल की थी तो मैं पहले नशा वशा करती रहती थी, कबाड़ा वाड़ा पहनती थी, भीख मांगती थी। जब भी अब भी ज़िंदगी मेरी होती तो मैं कहीं ख़त्म हो जाती या मेरी कहीं शादी हो जाती या कहीं मेरे क्या नाम है कुछ भी मेरे साथ हो सकता था, क्योंकि स्टेशन की ज़िंदगी में क्या होता है कि जो भी लड़की स्टेशन पे रहती है उसकी ज़िंदगी ख़राब हो ही जाती है। अब नहीं सोच सकती क्योंकि मैं भी थोड़ा सा पढ़ी लिखी हूँ। बालकनामा ने मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दी है कि मैं एक सड़क से निकल के मैं एक अच्छी ज़िंदगी पे हूँ। अभी मैं एडमिशन करा दो, मुझे पढ़ना है। This slumdog press may have changed lives, but simply getting the edition to print isn't easy. Their stories need to be typed, formatted and sent. And there's one particular problem at Waakhond. There's only one member of the team who knows how to use a computer. क्या करते हैं हम लोग पीछे खड़े होते हैं। हाँ, और हमारा मन करता है कि हम भी टाइपिंग करें क्योंकि दीदी का हाथ बहुत तेज तेज चलता है और पता भी नहीं चलता दीदी क्या से क्या जल्दी लिख देती है। हमारा बालकनामा का सिर्फ एक ही कंप्यूटर है और उसी पे हम सारा काम करते हैं। It's like the prized possession, right? सबसे अनोखा और इसको हमने अपना नाम भी दे रखा है राजा। राजा नाम दे रखा। But the allegation of police abuse from one reporter in the earlier editorial meeting is weighing on Shambhu's mind. करण सीरियस ले ले भाई। हटानी है तो हटा दो अभी। अगर एक बार लग गए ना हटेगा नहीं, अभी बोल रहा हूँ। Shambhu wants to publish a special edition of the paper that speaks directly to Prime Minister Narendra Modi. Taking cues from the PM's own monthly radio program, the edition will ask kids what's in their heart. उनकी अपनी मन के बात मोदी जी को क्या बोलना चाहते हैं। मैं उनसे यही चाहता हूं कि जो भी ऐसे सड़क एवं कामकाजी बच्चे हैं तो पहले जो भी कानून बनाते चाहे कोई भी लॉ बनाते तो इन बच्चों को भी एक मौका दे कि ताकि ये बच्चे भी अपनी बात रखें। With the edition decided, Shambhu's sending the paper's up-and-coming reporters, Chetan and Surab, to find stories direct from street kids' hearts. नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो? जो बच्चों के साथ अगर बड़ी बड़ी हादसे भी हो जाते हैं तो वो बड़ी न्यूज़पेपर वाले छापते भी थे तो एकदम छोटा सा एकदम कोने में छाप देते थे। उनकी जो भी प्रॉब्लम अगर बड़ी प्रॉब्लम भी होती है तो वो नहीं लिख पाते और नहीं आ पाते, और जो उन्होंने बहादुरी का काम करा होता है वो भी वो नहीं लिख पाते। आपके मन में क्या है कि अपने मन की बात बताना, आप पहले कौन बताएगा? This is the very first time the kids in this slum school are being asked to speak about their lives. And they're a little shy. क्या खेल दिखाते हो तुम? रस्सी पे चलते हो तुम? रस्सी पे चल के गुजारा करते हो अपना? यहाँ के बच्चे जुआ खेलते हैं, कबाड़ा पहनते हैं, फिर जुआ खेलते हैं ना और नशा करते हैं और यहाँ पे पढ़ने नहीं आते ना स्कूल जाते हैं। Just as we're about to leave,
A young girl shares a story that grabs Chetan's attention. हमारे सामने भी काफी एक्सीडेंट इस रोड में मैंने देखा कि एक्सीडेंट रूल फॉलो नहीं करता। एक बार डंपर हो गया था इसीलिए आप नहीं स्कूल जा पाते, इसीलिए नाम कटवा लिया। हमारे यहाँ पे एक गली में किसी का यहाँ पर मैं जब भी विजिट किया बच्चे The girl leads Chetan and Surab to a hectic intersection. And they learn why some kids have stopped coming to school. यहाँ पे ऐसे कितने बच्चों का एक्सीडेंट हो चुका है आज? मतलब कि 6-7 तो होंगे। 6-7 बच्चों का एक्सीडेंट हो चुका है। बच्चे बड़े और आंटियाँ होती हैं, ये सब का हो चुका है। वहाँ पे एक लड़के का हुआ था, डंपर से हुआ था। जो बड़े वाले ट्रक होते हैं। हाँ, उन्होंने उसके 3 टुकड़े थे, ये कि यहाँ से टुकड़ा हुआ था, ये बीच का टांगे अलग थे। हाँ, इसीलिए सब ज़्यादातर हमारी तरफ से जो बच्चे आते हैं यहाँ पे, उन लोगों ने तो छोड़ रखा है यहाँ पे स्कूल यहाँ से। This is how the paper makes its mark. They may start small, but with millions of street kids across the country, local stories like these can quickly make national news. The paper's biggest story to date exposed police forcing street kids to pick up suicide victims from train tracks. Creating such attention in the news, it sparked an investigation into the police. An impressive record for any paper, let alone one made by street kids. At last, it's the biggest day for the paper, print day, when every reporter sees their name in ink. But today is an even bigger day for Shampoo and Jyoti. इस बार देख लेते कि कौन कौन सी न्यूज़ छूटा है या फिर ये मुझे आप बता दो। भोलू की आ गई है ना, ये न्यूज़ भी आ रही है। ये देख, भोलू की तो आ गई है। As a reporter, is this the best bit? अब हमें ये लग रहा है कि जो हमने महीनों भर मेहनत किया ना, उसका इनाम मुझे मिला है। जो भी हमारा है, जैसे कि एक पूरा महीना जो लोग काम जाते करने को, उसके बाद जो पैसे मिलते हैं, तो हमारा पूरा मेहनत का इनाम ये है। Shampoo will soon turn 18, and it will be Jyoti's chance to shape the paper's future and take over as editor. हमारे बालकनामा में जो बच्चे होते वही होते हैं। हमारे समूह भैया भी कहीं 18 साल के हो जाएंगे, अभी 17 साल के। 1 साल के बाद तो मेरा इनाम आने वाला है बस। इसलिए मैंने ज्योति को शिकार उतार के आगे गलती ना हो, और कल के मेरी जगह पे ज्योति आएगी तो ज्योति को ये मालूम होना चाहिए कि कैसे प्रिंट होता है। क्या तो यहाँ पे ना ये देख सकते हैं, अगर कहीं पे रंग ज़्यादा हो रहा है या फिर खाली आ रहा है बीच में, तो ये इनको अभी बता सकता है कि ऐसे ऐसे गड़बड़ हो रहा है, आप इसे सही करो। But I sense it's going to be hard for Shampoo to say goodbye to the paper and someone he's grown very close to. ज्योति के मदद से पहुंचा समूह अपने घर। नहीं, ज्योति की मदद से मिला शंभू के नई जीवन, है ना? Shampoo and Jyoti may be street kids, but they have a sixth sense for operating in the city's chaos. And this paper is proof India's millennial kids are starting to read, slowly lifting many out of poverty. Leading the way are kids like Shampoo and Jyoti. लोग होते हैं एक दूसरे बच्चे की परेशानी समझे, वो ये ना सोचे कि गरीब में और अमीर में बहुत फ़र्क है। हम एक इंसान और एक इंसान के जैसे ही रहते हैं। Wampinga no mo Brabu no kanya Eju anu orele kispo
futuro. Wanga no nomo, boto no salo, ekiu pari, lona botogo.